Very good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine and also safe at your home. Dear students, as you know very well, we have already done our syllabus of semester 1. Clear? Today, we will start the syllabus of second sem. So please pick up your English course book volume 2. English course book volume 2. I am going to share with you chapter number 7 on page number 1. Heading is Folk Tales from Across the World. Folk Tales from Across the World. Folk tales means stories from across the world that we learn from one generation to second generation. These stories passed by one generation to second one. जैसे हमारे ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर्स हमें स्टोरीज़ बताते हैं, उनके ग्रैंडमदर ने स्टोरीज सुनाई होंगी उनको, सेम है वो हमें सुनाते हैं. सो दीज स्टोरीज पास्ड बाय फ्रॉम वन टू अनदर orally. Okay, as you can see, there are 4 pictures on top of the page number 1, Panchtantra. These are the names of the storybooks. You can read it if you prefer, if you like to read the stories. Okay, in this chapter we will read the 2 stories, but today we will read only one story. It's an interesting chapter and also a moral chapter. It gives us a moral lesson. जो हमें बताता है, क्या बताता है? Always help the poor people. Okay, let's begin it in detail. Folk tales are stories with no known authors. इट्स अ डेफिनेशन ऑफ फॉक टेल्स. ओके, फॉक टेल्स क्या होती हैं? स्टोरीज होती हैं, इनका कोई स्पेशली ऑथर्स नहीं होता. दे ग्रू आउट ऑफ द लिव्स एंड इमेजिनेशन ऑफ द पीपल. फोक टेल्स क्या होता है? जो लोगों की इमेजिनेशन होती है. दे ओरिजिनेटेड इन द एरा बिफोर लिटरेसी एंड वर पास्ड ऑन वर्बली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. दीज स्टोरीज पास्ड बाय फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर orally. Folk tales were made up to explain the wonders of the world or to teach morals and lessons. क्या है folk tales? Explain करती हैं. The folk tales explains the wonders of the world and also teach us a moral lesson. First of all, we will read the story about the cranes, Lord of the Cranes. Cranes, look at the picture. It's a picture of cranes. It's a bird. Okay, cranes are a large, long-legged and long-necked bird. उसकी एक लंबी सी गर्दन होती है. You can see in the picture. Folk tale from China. It's a story of China. There are mountains in China which reach all the way up to the clouds. Means mountains क्या हैं? जो काफ़ी high होते हैं, उनकी length बहुत ज़्यादा होती है. There are lot of mountains in China which reach all the way up to the clouds. ऐसे लगता है कि वो clouds को वो touch कर रहे हैं. High up on one of these mountains lived an old wise man. उसी mountains पे एक old और wise man रहता है. His name was Tian. Please underline it. The name of the old and wise man is Tian, which means heaven. Clear? He had friends who lived with him among the clouds, the cranes. उसके friends भी हैं जो उसके साथ रहते हैं, the cranes. Cranes is a bird. Please underline it. जो त्यान के friends हैं. त्यान fed them and cared for them. त्यान अपने जो friends हैं मीन्स वर्ड्स हैं उनकी टेक केयर करता है. द वर्ड शेयर देयर एक्सपीरियंस विद त्यान. जो वर्ड्स हैं वो अपना जो एक्सपीरियंस है दे शेयर देयर एक्सपीरियंस विद द ओल्ड मैन. दे स्पोक
ऑफ द वंडर्स दे हैड सीन ऑन देयर फ्लाइट्स डाउन बिलो। जो वर्ड्स हैं क्या करते हैं, वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं ना, क्लियर। तो वो अपना एक्सपीरियंस जो भी होता है जब ड्यूरिंग द फ्लाइट्स, तो अपना एक्सपीरियंस दे शेयर देयर एक्सपीरियंस विद द त्यान। जो भी उन्होंने देखा है वो अपना एक्सपीरियंस त्यान के साथ शेयर करते हैं। त्यान वॉज डिवोटेड टू दीज वर्ड्स एंड दे वुड डू एनीथिंग फॉर हिम। मतलब वो फुली अवेयर है, क्लियर। त्यान वॉज डिवोटेड टू दीज वर्ड्स एंड दे वुड डू एनीथिंग फॉर हिम। वो अपना कुछ भी कर सकता है फॉर हिज फ्रेंड्स, मीन्स किसके साथ, क्रेन्स के साथ। त्यान वॉज द कॉल्ड लॉर्ड ऑफ द क्रेन्स। त्यान को क्या बोला जाता है, लॉर्ड ऑफ द क्रेन्स। लॉर्ड ऑफ द क्रेन्स मीन्स क्रेन्स का भगवान। इट्स अ टाइटल ऑफ दिस स्टोरी, ओके, क्लियर। त्यान जो लॉर्ड ऑफ द क्रेन्स किसको बोला जाता है, त्यान। वाई, बिकॉज ही वॉज डिवोटेड टू द वर्ड्स एंड वुड डू एनी थिंग फॉर हिम। One day त्यान decided that it was time for him to go down to the city। एक दिन त्यान ने डिसाइड किया, it was a time, जी उनके लिए टाइम है, उनको सिटी में जाना चाहिए। To go down to the city, वो तो माउंटेन्स पे रहते हैं ना। He wanted to see if people remember to be kind and generous। वो क्या चाहता है, लोगों को देखना कि वो याद रखते हैं, remember to be kind and generous। So the old man called his crane, settled himself on its back and flew through the clouds। The Tyan settled himself on its back of the crane and flew through the clouds। वो क्रेन की बैक पे सेटल हो जाता है and flew through the clouds। Tyan roamed around the city and then he met a beggar। He roamed here and there but at the end he met a beggar। वो एक भिखारी को मिलते हैं। Would you be willing to exchange your clothes with mine? क्या तुम मेरे साथ अपने क्लॉथ्स चेंज करोगे, त्यान beggar को बोलता है। The beggar was shocked। beggar सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाते हैं। Oh no sir, why would you want my torn and old rags in exchange for your splendid robes? कि तुम्हारे तो इतने अच्छे क्लॉथ्स हैं, मैग्निफिशेंट इन अपीयरेंस। उसके त्यान के क्लॉथ्स कैसे हैं, ही लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, उसने अच्छे क्लॉथ पहने हुए हैं। सो दैट्स वाई द बेगर वॉज शॉक्ड एंड ही सेड टू द त्यान, वाई वुड यू वॉन्ट माई टॉर्न ओल्ड रैग्स इन एक्सचेंज फॉर योर स्प्लेंडेड रॉब्स। कि तुम अपने अच्छे कपड़े मेरे फटे पुराने कपड़ों के साथ क्यों चेंज करना चाहते हो। त्यान सेड, आई हैव कम टू टेस्ट द पीपल, कि मैं लोगों को टेस्ट करना चाहता हूँ। एंड नो वन मस्ट रिकॉग्नाइज मी, ताजो कोई भी मुझे रिकॉग्नाइज ना कर सके, मुझे पहचान ना सके। देन द बेगर अंडरस्टूड दैट त्यान वॉज नो ऑर्डनरी मैन एंड ग्रेटफुली एग्री टू द एक्सचेंज। आफ्टर दैट क्या होता है, जो बेगर है वो समझ जाता है त्यान वॉज नॉट अ कॉमन मैन, कि वो कोई साधारण मैन नहीं है। वो उसके बाद वो ग्रेटफुली मतलब खुशी खुशी एग्री हो जाता है। ग्रेटफुली एग्रीड विद द त्यान एंड गेव हिम हिज क्लॉथ्स, और अपने जो क्लॉथ्स हैं उसको दे देता है। त्यान ब्लेस द बेगर, वो भिखारी को ब्लेसिंग्स देता है। एंड वेंट ऑन हिज वे, अपने रास्ते चला जाता है। क्लियर। अब त्यान ने क्या किया, अपने जो क्लॉथ्स है वो बेगर के साथ एक्सचेंज कर लिए। क्यों चेंज किए थे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेस्ट द पीपल। मैनी डेज वेंट वे, काफ़ी दिन चले जाते हैं। एंड त्यान कंटिन्यूड बैगिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी। मैनी वेल्दी पीपल पास्ड हिम बाय बट नो वन सीम टू नोटिस हिम, नॉट अ सिंगल पर्सन ड्रॉप्ड अ कॉइन इन त्यान्स कप। क्या होता है, काफ़ी दिन चले जाते हैं, मतलब त्यान ने अब क्या कर दिया, वो भिखारी बन जाता है। क्लियर। तो वो सिटी में बैठा हुआ एक स्ट्रीट में, बहुत सारे रिच लोग आते हैं वहाँ पे, लेकिन कोई इसको नोटिस नहीं करता। इवन अ सिंगल पर्सन भी उसको एक कॉइन नहीं देता। इन त्यान्स कप, उसके कप में एक सिंगल पर्सन भी कॉइन नहीं डालता। कितने भी वहाँ, वो एक अच्छी सिटी में था, लोग वहाँ पे रिच हैं, लेकिन नॉट वन अ सिंगल पर्सन ड्रॉप्ड अ कॉइन इन त्यान्स कप।
वन इवनिंग टायर्ड एंड हंग्री, एक शाम वो बहुत थक जाता है और उसको भूख लगती है। टियान अराइव्ड एट अ स्मॉल इन, वो एक छोटी सी इन में चला जाता है। द ओनर हु वॉज कॉल्ड वैंक, जो ओनर है, वट इज़ द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द इन, वैंक, स्माइल्ड एंड वेलकम्ड हिम, वट कैन आई डू फॉर यू। जब वो टियान को देखता है तब वो खुश होता है और उससे पूछता है वट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ।